فضل ربی شو میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا شو براہ راست ہوتا ہے لیکن یہ ریکارڈڈ شو ہوگا، اور دسمبر کا مہینہ جو ہی آتا ہے پوری دنیا میں جشن ولادت المسیح کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، لوگ مناتے ہیں اور تمام احباب تحائف کے ساتھ بھی ایک دوسرے کو برکت دیتے ہیں۔ ذات المسیح کی بات جب کی جاتی ہے، تین مذاہب میں ان کی شخصیت کا ذکر ملتا ہے، یہودیت، اسلام اور مسیحیت میں، اور لوگ ان کی ذات کے تعلق سے مختلف تعلیمات کو مانتے ہیں۔ خدا کی باتوں کو بھید بھی کہا گیا ہے۔ بھید سے مراد چھپی ہوئی بات، لیکن خدا کا الہام، خدا کا کلام جب پہنچتا ہے تمام انسانوں تک تو اس کی تفسیر جب ہوتی ہے، جیسے خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے، تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے، تو اس بھید کو خدا ہی کھول سکتا ہے، اور اس کی تصویر بہت واضح ہے جو خدا کے کلام میں ہمیں نظر آتی ہے کہ خدا کا بھید ذات المسیح میں کس طرح سے کھولا گیا ہے۔ یہ اس اہم دن کے موقع پر ضرور ہے کہ تمام مسلمان، تمام مسیحی، یہودی یا دیگر لوگ جو ان کی ذات سے واقف ہیں یا واقف ہونا چاہتے ہیں، کلام خدا اس بھید کو کیسے کھولتا ہے، اس کے لیے میں آغاز میں آپ کے سامنے 2-3 آیات رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد پھر ہم مزید اس پیغام کو جو ان کی ذات اقدس کے وسیلہ سے بنی نوع انسان کو دیا گیا ہے بہتر طور سے کلام کی روشنی میں سیکھ سکیں۔ افسیوں کے خط میں جب پولس رسول لکھتا ہے تو پہلے باب کی 9ویں آیت میں وہ یوں کہتا ہے، چنانچہ اس نے اپنی مرضی کے بھید کو اپنے اس نیک ارادہ کے موافق ہم پر ظاہر کیا جسے اپنے آپ میں ٹھہرا لیا تھا، تاکہ زمانوں کے پورے ہونے کا ایسا انتظام ہو کہ مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ ہو جائے، خواہ وہ آسمان کی ہوں یا زمین کی۔ ذات المسیح میں جو بھید کھلتا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کی پہچان بہت ضروری ہے، اور اسی خط کے 3 باب کی 9ویں آیت میں اس بھید کے بارے میں اور زیادہ بات واضح کر دی گئی ہے، اور لکھا ہے، اور سب پر یہ بات روشن کروں، سب پر، پوری دنیا پر یہ بات روشن کروں کہ جو بھید ازل سے سب چیزوں کے پیدا کرنے والے خدا میں پوشیدہ رہا، اس کا کیا انتظام ہے۔ خدا کا بھید جو پوشیدہ تھا، اس کا انتظام کیا ہے۔ جب ہم ان آیات کو دیکھتے ہیں، پہلی آیت جو آپ کے سامنے رکھی گئی کہ خدا کا بھید مسیح میں کھل گیا ہے، اور یہ بھید کس طرح سے کھلا ہے، اس کے لیے بہت واضح بیان فرمایا گیا ہے۔ کلوسیوں کے خط کا 2 باب اور اس کی 2 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں، سب چیزیں، سب سے پہلے اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں۔ اب 2 باب کی 2 آیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر اس طرح سے لکھا ہے، تاکہ ان کے دلوں کو تسلی ہو اور وہ محبت سے آپس میں گھٹے رہیں اور پوری سمجھ کی تمام دولت کو حاصل کریں، اور خدا کے بھید یعنی مسیح کو پہچانیں۔ تو پہلے میں نے 15ویں آیت سے پڑھا تھا کہ سب چیزیں اس میں پیدا کی گئی، اور پھر 2 آیت میں 2 باب کی 2 آیت یہ کہہ رہی ہے، تاکہ ان کے دلوں کو تسلی ہو۔ جب کوئی اس بھید کو جان لیتا ہے تو اس کی زندگی میں خدائی تسلی آ جاتی ہے، اور پھر محبت میں آپس میں ملے رہیں،
खुदाई मोहब्बत और मलाप आ जाता है और पूरी समझ की दौलत को हासिल करें कि मुकम्मल खुदा की तालीम से आशनाई पाएं और खुदा के भेद यानी मसीह को पहचानें। मसीह में भेद खुल जाता। और जब फरिश्ता आसमान से भेजा गया तो उसने क्या कहा, मत्ती की अंजील में हम वलादतुल मसीह के ताल्लुक से देखते हैं। मत्ती की अंजील पहला बाब है और उसकी 18 से 23 आयत। यहां पर लिखा है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुद्स की कुदरत से हामला पाई गई। पास उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने आसमान से उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा कि ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहां ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। फरोजुल लुगात में मौलवी फेरोज ने जब लफ्ज ईसा का तर्जमा किया है, माँ ने बताए हैं, तो उन्होंने कहा गुनाहों से निजात देने वाला, और ये फरिश्ते का पैगाम है आसमान से। और ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि देखो एक कुंवारी हामिला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। ये सब कुछ नबी की मार्फत जो कहा गया था वो पूरा हुआ। अंबिया की पेशनगोइयों के मुताबिक खुदा का ये मंसूबा जो अंबिया की मार्फत उसने फरमाया था वो पूरा हुआ। और आज हम गौर करेंगे, जो हमारा मौजू होगा, कुरान, ज़बूर, अंजील, तौरेत में पेशनगोइयों के मुताबिक अल-मसीह की पहचान। तो जब हम सूरह अल-माइदा में आते हैं तो जब इसकी 46वीं आयत को देखते हैं, 45वीं आयत को देखते हैं, तो यहां पर इस तरह से लिखा है, और उन पैगंबरों के बाद उन्हीं के कदमों पर हमने ईसा इब्ने मरियम को भेजा। पैगंबरों की बात है, पेशनगोइयों की बात है, पेशनगोइयों को समझने की बात है, उनमें जो भेद हैं उसको जानने की बात है। उन पैगंबरों के बाद उन्हीं के कदमों पर ईसा बिन मरियम को भेजा, जो अपने से पहली किताब तौरेत की तस्दीक करते थे और उनको अंजील अनायत की, जिसमें नूर और हदायत है, और तौरेत की जो उससे पहली किताब है तस्दीक करती है और परहेजगारों को राह बताती और नसीहत करती है। जो पेशनगोइयां हैं जिनमें राह बताई गई है, जिनमें नसीहत की गई है, वो किस तरह से आज समझने की जरूरत है। और अहले अंजील को चाहिए कि जो अहकाम खुदा ने उसमें नाजल फरमाए हैं उनके मुताबिक हुक्म दिया करे। खुदा ने उसमें हुक्म नाजल फरमाए, पेशनगोइयां दी गई हैं, अहकाम दिए गए हैं, हदायत दी गई हैं, उसके मुताबिक हुक्म दिया करें। यहां पर वाज़ेह है खुदा के हुक्म हैं, उसके मुताबिक करो। और वही अंजील जो उस वक्त मौजूद थी आज भी मौजूद है। आगे देख लीजिए, जो खुदा के नाजिल किए हुए अहकाम के मुताबिक हुक्म ना देगा तो ऐसे लोग नाफरमान हैं, ऐसे लोग नाफरमान हैं। और इसके साथ हम देखते हैं, जब पेशनगोइयों की बात की गई है तो यहां पर फरिश्ता हमने देखा जो आता है। और फिर हम सूरह मरियम में चलते हैं और यहां पर हम देखते हैं कि इसकी 19वीं, 20वीं, 21वीं आयत आप देख सकते हैं। और यहां पर इस तरह से लिखा है, यहां पर फरिश्ते की बात की गई है। तो हम शुरू कर लेते हैं 18वीं आयत से। हमने उनकी तरफ अपना फरिश्ता भेजा तो वो उनके सामने ठीक आदमी की शक्ल बन गया। मरियम बोली कि अगर तुम परहेजगार हो तो मैं तुमसे खुदा की पनाह मांगती हूं। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे परवरदिगार का भेजा हुआ यानी फरिश्ता हूं और इसलिए आया हूं कि तुम्हें पाकीज़ा लड़का बख्शूं। मरियम ने कहा, मेरे यहाँ लड़का क्यों कर होगा, मुझे
किसी बशर ने छुआ तक नहीं और मैं बदकार भी नहीं। फरिश्ते ने कहा यूं ही होगा, तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया कि ये मुझे आसान है और मैं उसे इसी तारीख पर पैदा करूंगा ताकि सब लोगों के लिए अपनी तरफ से निशानी और जरिया रहमत और मेहरबानी बनाऊं, और यह काम मुकर्रर हो चुका है। जरिया मेहरबानी और रहमत बनाऊं और यह मुकर्रर हो चुका है। जब हम पेशनगोइयों की बात करते हैं, अंबिया की बात करते हैं, बाइबल से, कुरान से मैंने आपके सामने बातें रखी हैं। जरूरी है कि हम जरिया रहमत और मेहरबानी, खुदा नहायत रहीम और मेहरबान है, तो ये जरिया मुकर्रर कर दिया गया है। मेरे साथ दो मेहमान भी होंगे और हम पेशनगोइयों की रोशनी में ज़ातुल मसीह के ताल्लुक से सीखेंगे, बरकत पाएंगे। मेरे साथ जिंदगी टीवी पर एक शो है चिरागे राह, उसके मेज़बान और बहुत सी किताबों के मुसन्निफ, पूरी दुनिया में वो इल्मे इलाही के उस्ताद हैं, जनाब मोहतरम नवीद मलिक साहब। सर खुश आमदीद, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच भाई, बिल्कुल ठीक ठाक, परवरदिगार का एहसान है। थैंक यू जी। हम वलादतुल मसीह का जश्न मना रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे दरखास्त करूंगा, जैसे मैंने कुरान और बाइबल से ज़ातुल मसीह के ताल्लुक से पेशनगोइयों की बात की गई, अंबिया की बात की गई, आज के दौर में इन बातों को समझने के लिए उनकी पैदाइश और पैदाइश के बाद जो पैगाम पहुंचाया गया, अंबिया और पेशनगोइयां इसके ताल्लुक से क्या कहती हैं? क्यों जरूरी है कि वो कहां पैदा होंगे, किस खानदान से पैदा होंगे? पहले तो इस पर रोशनी डालिए ताकि जो वहाम लोगों में है वो दूर हो सके। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, और मेरे लिए ये बड़े आजाज की बात है कि आज फिर मैं अपने नाजरीन के सामने आ सकूं और इस अहम तरीन मौजू पर थोड़ी सी देर के लिए मुख्तसर तौर पर बात कर पाऊं। हुजूर, जैसा आपने फरमाया है, परवरदिगारे आलम का इंतजाम जो बनीनो इंसान के लिए है, गुनाहगार इंसान के लिए, परवरदिगार अपना हर एक काम अपने ठहराए हुए वक्त के मुताबिक करता है। शायद मैं, मेरे नाजरीन और आप वक्त बे वक्त लगे रहते हैं, लेकिन परवरदिगार हर एक काम अपने ठहराए हुए और मखसूस शुदा और मुकर्ररा वक्त पर करता है। और चूंकि रब्बुल इज्जत के हुजूर से हम हजरत आदम में होकर दूर चले गए अपनी मनमानी की, और परवरदिगार हमें फिर से वापस लाना चाहता था, लेकिन हम में तो कोई सही थी नहीं, कोई ऐसी कोशिश कर नहीं सकते थे जिस सबब से हम उसकी कुर्बत और उसकी हजूरी को महसूस करें और उसकी हजूरी में जाएं, जिस सबब से गुनाहगार और पापी मनुष्य के लिए परवरदिगार ने खुद इंतजाम किया है। और उस इंतजाम के लिए तख्लीके कायनात के फौरन बाद से वो निशानियां छोड़ता चला गया, नबुव्वतें करता चला गया, पेशन गोइयां करता चला गया, अंबिया की मार्फत वो बताता चला गया कि कोई आने वाला है जो तुम्हारे और बीच में सुलह करवाएगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारी मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत तफसील के साथ आगाज किया है, और ये बात जो अभी आप फरमा रहे हैं, ये मैं पूछना चाह रहा था कि मकसद आमदुल मसीह जो अभी आपने फरमाया है, मैं चाहूंगा कि आगाज कीजिए, क्यों, कहां वो पैदा होंगे, किस खानदान से आएंगे? ये पेशन गोइयां की गईं, आप भी जानते हैं, ज़करिया की किताब में हम देख लेते हैं, इसके बाद यसाया ने बात की है उनकी आमद की, और भी अंबिया हैं पुराने अहदनामा से, तो उनकी पैदाइश का मकाम बताया गया है, कहाँ वो होंगे, किस खानदान से होंगे। तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए कि उनके बारे में वाज़ेह अगर किसी ने जानना है, पहचानना है, तो उनकी किस खानदान से वो आएंगे और जगह जहां पर वो पैदा होंगे, इसमें क्या पैगाम दिया गया है और यह कहां कहां मिलता है? आमीन, थैंक यू हुजूर। जहां तक आपकी वलादत के ताल्लुक से नबुव्वतें और पेशन गोइयां हुई हैं, यूं तो तौरात शरीफ, जबूर शरीफ और सहाइफुल अंबियाए कराम भरे पड़े हैं,
लेकिन मैं नाजरीन की तवज्जो सबसे पहली पेशनगोई की तरफ लेकर जाना चाहता हूं, और वो पेशनगोई वो है जो सबसे पहली किताब, तौरात शरीफ की पहली किताब यानी पैदाइश या तकवीन जिसको कहा जाता है, उसके तीसरे रुकू, तीसरा बाब और इसकी 15 आयत में है। और किताब मुकद्दस से इस आयत को तलावत किए देता हूं कि परवरदिगार अबलीसे लई से, जो बसूरत सांप बनकर जन्नत अर्जी यानी अदन में दाखिल हुआ था और आदम और हवा को उसने परवरदिगार आलम की हुजूरी से दूर कर दिया, उससे वादा करते हुए रब्बुल इज्जत ये फरमाते हैं, तब खुदा ने औरत से कहा कि तूने ये किया है। औरत ने कहा कि सांप ने मुझको बहकाया। और उसके बाद मैं ये बताना चाहता हूं 15 आयत में, और मैं तेरे परवरदिगार खालिके कायनात सांप से, अबलीस से कलाम कर रहा है और उससे यह कह रहा है कि मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। गोया आपने साहब जो भी सवालात किए हैं, इसी आयत मुकद्दस में ये जवाबात मौजूद हैं। हुजूरुल मसीह की वलादत के ताल्लुक से सबसे पहली पेशनगोई, सबसे पहली बात जो कलाम मुकद्दस, कलाम इलाही में रकम है, वो ये है कि वो औरत की नस्ल से होंगे। बहुत शुक्रिया मलक साहब, आपने पहली पेशनगोई की बात की, जबरदस्त बात की। और नाजरीन, मैं ये आपके सामने इस वक्त ये देख लीजिए, मेरे पास कुरानुल करीम है और ये मौलाना फ़तह मोहम्मद जलंधरी का तर्जमा है। सूरह मरियम है और उसकी 21वीं आयत आपके सामने रख रहा हूँ। 20वीं आयत से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है, ताकि लोगों के लिए अपनी तरफ से निशानी बनाऊं। ये कौन सी निशानी थी? अगर आप का ताल्लुक उलमा के ग्रोह से है, अगर आप पेशनगोइयों के तालिब इल्म और असातिज़ा के दर्जे पर बराजमान हैं, तो वो निशानी जिसका जिक्र मुख्तलिफ कुरानी आयात में किया गया है, वो निशानी जनाबे मलक साहब ने बहुत वाज़े तौर पर वो निशान बता दिया। वो निशानी क्या है? वो निशानी ये है कि वो औरत की नस्ल से पैदा होगा। पूरी कायनात, इस जमीन पर जितनी नस्लें गुजरी हैं, आप मुतालिया कर लीजिए। आप इमरानियात के अगर इल्म रखने वाले हैं, इल्मुल इंसान का इल्म रखने वाले हैं, अगर साइंस का इल्म रखने वाले हैं, तो जो पैदाइश का तरीकाकार है वो इस कायनात में जोड़े के सबब से, जोड़े के मलाप से जो जिंदगी रखते हैं, जिंदगी आगे चलती है। यहां पर खुदा ने उस निशानी को वाज़े कर दिया, जो आज मसीहों के लिए, अहले इस्लाम के लिए सबसे बड़ी बात जो समझना है वो ये है कि वो निशानी बनकर आए हैं। अगर इस निशान को आज भी कोई नहीं समझता तो खुदा के भेद को समझने से कासिर रहेगा। जरूर है पहली पेशनगोई कि मैंने उसको निशानी बनाया है। पहचान कैसे करोगे खुदा का भेद जिसमें खुल गया है? वो निशानी ये है कि वो औरत की नस्ल से पैदा होगा। आज जब हम जश्न वलादतुल मसीह मना रहे हैं, तो आसमान का निशान, आसमान का पैगाम हम तक पहुंचा है। पहचान, खुदा इंतजार कर रहा है। हमारे दूसरे मेहमान हमारे साथ शरीक हैं, अक्सर मेरे साथ होते हैं। इल्म इलाही के असातिज़ा में बहुत अरसा इंटरनेशनली खुदा उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। मोहतरम पास्टर परवेज साहब, सर खुश आमदीद, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर दानियाल। सर, आपसे मैं चाहूँगा कि मलक साहब ने बहुत खूबसूरती से सारी बातें बयान फरमाई। आपसे मैं चाहूँगा कि उनकी जो पैदाइश से मुतल्लिका पेशनगोइयाँ हैं पुराने अहदनामा में, वो किस ख़ानदान से होंगे, किस जगह पर पैदा होंगे, वाज़े पैगाम दिया गया। चूँकि यह भी लिखा है कि बहुत से झूठे मसीह आएंगे जो दावा करेंगे, लेकिन उनका हसब नसब कैसे जानेंगे, कहाँ पैदा होना है मसीह को? इसके ताल्लुक से मैं चाहूँगा आप कुछ रोशनी डालिए, और क्यों खुदा ने ये वाज़े पैगाम दिया ख़ानदान और जगह जहाँ वो पैदा होंगे, क्या पैगाम था इन पेशनगोइयों में?
शुक्रिया डॉक्टर दानियाल। बड़ा खूबसूरत आगाज है जो मेरे प्यारे दोस्त नवीद मलिक साहिब ने कहा कि जो पहली पेशन गोई है कि वो तेरे सर को कुचलेगा। खुदा के नजात का बड़ा मंसूबा जो है वो विलादतुल मसीह में है। और सर हम ये देखते हैं। पास्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप मकसद की तरफ आए हैं। मैं चाहूंगा कि ये जो बात है, चूंकि बहुत से मसीही होने के दावेदार हैं लोग, तो मैं चाहूंगा जो जकरिया और यसाया ने उनके हसब नसब की बात की है, उनकी पैदाइश का मकाम भी बताया गया, नासरत में पैदा होंगे, तो ये क्यों, ये पेशनगोइयां जो हैं, ये मकाम भी बताया गया, खानदान बताया गया, इसमें क्या पैगाम है? ये थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यसाया ने जो अंबियाए अकबर में एक बड़ी उनकी नुमाया हैसियत है, उन्होंने ये पेशन गोई की। यसाया 7 बाब की 4वीं आयत में पढ़े देता हूं, लेकिन देखो खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी। और फिर इसी यसाया 9 बाब की 6ठी आयत में है, इसलिए कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। और अगर हम इन्हीं पुराने अहदनामा के देखें, और मीका की किताब के 5वें बाब की 2री आयत में है, लेकिन ए बैतलहम अफराता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हुजूर इसराइल का हाकम होगा। उसका मसदर जमाना साबिक खां कदीमुल अयाम से है। तो हम ये देखते हैं कि बड़ी वाज़े तौर पर इस जगह को बताया गया था कि ये बैतलहम का इलाका है। और जब हम नए अहदनामा में खुदावंद यीशु मसीह की वलादत को देखते हैं, तो इन पेशनगोइयों की रोशनी में हम हर एक बात को बड़ा वाज़े तौर पर देखते हैं। वो निशानी या वो निशान, जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे कि एक कंवारी हामला होगी, और अंबियाए अकबर में यसाया बड़ी वाज़े तौर पर इस निशानी का जिक्र करते हैं। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, थोड़ा सा इस बात पर रोशनी डालिए। बैतलहम नासरत का जिक्र आता है, तो ये क्यों अहम है? कलाम ने क्यों शहर का नाम बताया, जगहों का नाम बताया? इसमें क्या पैगाम है, क्या इंसानों तक पैगाम है कि वो कहीं किसी और जगह पर पैदा होने वाले मसीह को मसीह ना समझ बैठे? ऐसी बात कुछ बयान की गई है, क्यों ये कहा गया है? जी, अगर आप लफ्जी तौर पर बैतलहम जो रोटियों का घर, तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने एक पैगाम में वाज़े तौर पर कहा कि मैं वो रोटी हूं जो आसमान से उतरी हूं। इंसान रूहानी तौर पर ऐसी उसकी भूख थी जो ना आसमान से गिरा हुआ मन पूरा कर सका, लेकिन वो उस जगह पर आया जहां पर ये मान ही पूरे हो रहे थे कि वो हमेशा की जिंदगी और हमेशा की जिंदगी की रोटी बनकर बनीनो इंसान के लिए इस शहर में आया। इसलिए इस मुकाम की बड़ी अहमियत और इसका मुकाम है कि जो कुछ अंबिया की निस्बत, अंबिया की मार्फत कहा गया था, उसे पूरा होना जरूर था। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, बता रहे हैं कि बैतलहम नासरत का जिक्र जो है अंबिया इकराम ने पुराने अहदनामा में किया। जब आप किसी जगह पर जा रहे होते हैं तो वहां पर बोर्ड लगे होते हैं, जब आपकी मंजिल आ जाती है आप वहां पर रुक जाते हैं। खुदा ने जब शहरों के नाम दिए हैं तो इससे मुराद ये है कि अगर कोई ऐसा दावा करने वाला आ जाए किसी भी दौर में जो ये कहे कि ये आयात, ये पेशनगोइयां जिनके बारे में अंबिया ने फरमा दिया था
वो मेरी जात में पूरी हो रही हैं, मुझ में पूरी हो रही हैं, मैं वही हूं। तो देखा जाए, अगर कोई मसीह होने का दावा करता है तो लिखा है बैतलहम में उसकी पैदाइश होगी। और अगर आप तारीख से कुछ दिलचस्पी रखते हैं तारीख में, तो फिर जो उस दौर की तारीख है, उस दौर में जो हुक्मरान थे, तारीख वाजे कर देती है इन बातों को कि बैतलहम में मसीह पैदा हुए। और जब वो पैदा हुए तो फिर खुदा की निशानी, खुदा का पैगाम उनकी ज़ाते अक़दस के वसीला से पहुंचाया गया। तो अगर कोई ये दावा करता था या करता है या करेगा कि वो मसीह है, बहुत से लोगों ने किया भी और वो कहते भी हैं जी वो हमारे जो रहनुमा हैं वो मसीह भी हैं, तो भाई ये देखिए नासरत और बैतलहम का जिक्र है। फिर इब्ने दाऊद उनको कहा गया है, वो किस खानदान से आएंगे, वो दाऊद की नस्ल से आएंगे। तो फिर ये भी बहुत ज़रूरी है, हसब नसब का जानना ज़रूरी है ताकि पहचान हो सके। खुदा ने वाज़े फरमा दिया था। बहुत शुक्रिया पास्टर प्रवेश साहब, आपने इस पर भी रोशनी डाली है। अब मैं मलक साहब, आप जो बात कर रहे थे उसकी तरफ आते हैं कि मकसद वलादतुल मसीह, आप दोनों अहबाब ने ज़्यादा इस नुक्ते पर गुफ्तगू करने की कोशिश की, तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप, ये चूँकि अहम है और यही असल बात है, तो आप दोनों अहबाब ने, लेकिन चूँकि बहुत से जो नाजरीन हैं वो इस बात से वाकिफ़ नहीं हैं कि मसीह की पहचान कैसे होगी, तो उनके लिए ज़रूरी है कि उनको बताया जाए, जनाब ये शहर है जो खुदा ने कई 100 साल पहले अंबिया की मार्फत पहुंचा दिया पैगाम, जब पूरा हो तो तुम जान लो कि खुदा के नविश्ते, खुदा की पेशनगोइयां किस शख्सियत में पूरी हो रही हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूं आप दोनों अहबाब का। अब आप दोनों अहबाब से दरखास्त है कि मकसद आमदुल मसीह में कौन कौन सी चीजें हैं जो सिर्फ मसीह में पूरी हुई, क्यों अंबिया उसको पूरा नहीं कर सके। तो मैं दोनों अहबाब से दरख्वास्त करूंगा, पहले मलक साहब आप मकसद के जो निकात हैं वो बयान फरमा दीजिए, कोई और शख्सियत उनको पूरा क्यों नहीं कर सकती, थोड़ा सा इस पर भी रोशनी डालिएगा, और फिर मैं परवेज साहब से भी दरख्वास्त करूंगा। हुजूर, थोड़ा सा मुझे टाइम की लचक दीजिए ताकि मेरी बात मुकम्मल हो जाए। कोशिश करूंगा कि समुंदर को कूजे में बंद करूं। जी एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप ये पूछ रहे हैं कि ये जो नबूवतें हैं, ये पेशनगोइयां हैं, या ये जो निशानियां हैं, इनकी क्या वजह थी, क्या रीजन थी। और बड़े खूबसूरत अंदाज से दोनों भाइयों ने इन बातों पर बयान की। फिर मैं इस पर आता हूं जो बात आपने पूछी है। एक बात तो बिल्कुल यही है कि इंसान उस मसीहा के ढूंढने में, जैसे आपने फरमाया कि कोई गलती ना करे, जैसे मैं यहां जंगल में जहां पर मैं हूं जाता हूं वॉक करने के लिए, और दरख्तों के साथ रेड पट्टी बंधी हुई होती है कि वो रास्ता दिखा रही होती है कि इधर से जाएंगे तो फिर वहां पर वापस खुदा आएंगे। आपको तो ये बरकत दे। नबूवतें जी जी मलक साहब, खुदा आपको बरकत दे। यही बात है, चूंकि वक्त थोड़ा होता है और उस वक्त में मेरी सिर्फ दरख्वास्त ये होती है कि सारी बातें अहम हैं, ओके। लेकिन इस वक्त में जो अहम नकात हैं वो अगर बयान किए जाएं ताकि ज्यादा लोग मुस्तफीद हों, ज्यादा वाज़े बातें हों, ये मकसद है। वरना तो वक्त अगर हो तो बहुत सी बातें जो की जा सकती हैं। अब मैं चाहूंगा कि पहला मकसद, दूसरा मकसद, तीसरा मकसद, चौथा मकसद, इस पस मंजर में आप बात कीजिए तो मैं शुक्रगुजार हूंगा। थैंक यू। सबसे पहली बात, हुजूरुल मसीह के इस दुनिया में आने का मकसद यह था कि नंबर एक तो वो नबियों की नबुवतों की तकमील हो जाए। क्योंकि जब हम जनाबे हजरत मती और उनकी मार्फत लिखी गई मुलहम इंजील और इसके 5वें बाब की 17 आयत में देखते हैं तो मसीहा फरमाते हैं, ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूं, मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। तो पहली बात तो यह है कि आपकी आमद का मकसद यह था कि जो आपके ताल्लुक से तौरात शरीफ, जबूर शरीफ, साहिफुल अंबिया में नबूवतें हुई हैं, आप उनकी तकमील बन जाए। बहुत शुक्रिया मलक साहब। यहीं पर इससे एक सवाल फिर उठता है,
प्लीज। उनके दौर में भी बहुत से मसीह होने के दावेदार हुए, ओके, उसके बाद भी बहुत से मसीह होने के दावेदार हैं। आमीन। वो भी ये कहते हैं कि वो इन्हीं पेशनगोइयों के मुताबिक हैं। तो यहाँ पर ये बात आज रोज़े रोशन की तरह अया कर दीजिए, फिर उनको लोग कैसे पहचाने? पहली बात तो ये है कि एक सबसे बड़ी पहचान ये है कि उसका औरत की नस्ल से होना बहुत जरूरी था, और अगर किसी का कोई और दावा करता है तो उसको औरत की नस्ल से पैदा होना साबित करके दिखाएं। जबरदस्त बात हो गई। नंबर दो में आपको ये बात भी बताना चाहता हूं कि जिस मसीहा की आमद के ताल्लुक से बातें हो रही हैं, जिनकी निशानियों के पूरा होने के ताल्लुक से बातें हो रही है, वो हूबहू मसीह इब्ने मरियम में पूरी हो रही है, किसी और में नहीं। क्योंकि जब मैं पैदाइश 12 बाब और उसकी 3 आयत में देखता हूं तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से यह वादा हुआ था कि आपकी नस्ल के वसीला से जमीन के सारे कबीले बरकत पाएंगे, जिनमें दुनिया के तमाम मज़ाहिब के लोग शामिल हैं। यहां पर बात करते हुए मैं ये भी कहूंगा कि जो ये बात कहते हैं ना, वो जरा कुरान हकीम की उन आयात को देख लें जिन आयात में लिखा हुआ है कि नबुव्वत और पैगंबरी और किताब अब्राहम से इसहाक और याकूब को दी गई है। तो पहले तो वो मोहतरम साबित करें मलिक साहब, इस बात को कि जिनको वो मसीहा समझते हैं वो इसहाक, अब्राहम और। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मैं चाहूंगा कि आप ये आयात जिनका आपने जिक्र फरमाया है, इन आयात के नंबर जरा और सूरत का नाम बता दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। कुरान हकीम में सूरत नंबर 29 है और उसकी 27 आयत है। मैं नोट किए हुए हूं लेकिन इस वक्त कोई नाम बात में नहीं, कोई साफ बात नहीं, आप लिख पाया। रेफरेंस दे दें, बस रेफरेंस दे दें, लोग पढ़ सकते हैं। 29 की 27 है और 45 की 16, 45 की 16 बाद में देख लें, आपको पता चलेगा कि नबुवत जो है वो अब्राहम से इसहाक और याकूब को मिली है और कोई सिलसिला ही नहीं है। जबरदस्त और बात हो गई। उनको फिर नाजरीन, अब्राहम, मलिक साहब शुक्रिया शुक्रिया। मलिक साहब ने यहां पर, जैसा कि हमारा मौजू है कुरान, तौरेत, ज़बूर, अंजील, तो जब कुरान की ये आयात आज भी मौजूद हैं, मुतशाबे या मनसूख नहीं है, वाज़े हैं, तो फिर इनकी रोशनी में आज देखना पड़ेगा कि रहनुमाई किस तरफ की जा रही है, रजू किस तरफ करने की बात की जा रही है, ढूंढने और तलाश करने की बात की जा रही है। सूरा अल-निसा 82 82वीं आयत आज हम सब की तवज्जो चाहती है। मलिक साहब बहुत शुक्रिया, जारी रखिए अपनी बात को। और मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहूंगा कि जनाबे इब्राहीम और इसहाक और याकूब की नस्ल से आना जरूरी था, तो औरत की नस्ल से होना, नबुव्वतों की तकमील का उनमें होना, और नंबर 2 इनकी नस्ल से होना उनका जरूरी था। और एक और बात जो मैं यहां पर करना चाहता हूं, जिन जिन जगहों की पेशनगोइयां आप पहले कर चुके हैं, बता चुके हैं, जनाब मोहतरम परवेज साहब भी, उनकी जाए वलादत के ताल्लुक से भी पहले से पेशनगोइयां हो गई हैं। तो जिनको लोग कुछ समझते हैं उनको वहां वहां साबित करें तो फिर देखेंगे। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। आपने जबरदस्त तरीके से, जो मैं आपसे चाहता था कि आप बयान करें, अब आपने उन नकात पर रोशनी डाली है। यही मैं चाहता हूं कि 1 घंटा हमारे पास होता है, जो अहम नकात होते हैं उनको हम अपने जो नाजरीन हैं उन तक पहुंचाएं। अगली बात आप करना चाहते हैं, प्लीज कीजिए। जी, मैं ये कहूंगा कि मसीहा जब इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं तो आपकी जो तालीम है, उस तालीम में, ये अगली बात मैं कर रहा हूं, और उस तालीम में पहले कहा गया था कि दांत के बदले दांत, यानी अदला का बदला। लेकिन जनाबे मसीहा की तालीमात ये है कि तुम अपने सताने वालों से मोहब्बत और अपने अपने सताने वालों के लिए दुआ करो और अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो। ये उनकी दुआ है। ये एक और बात थी। और एक और बात, जब मसीहा आए तो वो भी निशान लेकर आए हैं, और वो निशान मौजज़ात थे। ना सिर्फ अंधों और बहरों की आंखें खोलना और कान देना, बल्कि उन्होंने मुर्दों को भी जिलाया है। मलिक साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने ये बातें की हैं, हम शुक्रगुजार हैं। पास्टर परवेज साहब जी, अब आपसे दरखास्त है कि यीशु मसीह
की आमद, वलादत का मकसद बहुत खूबसूरती से उन्होंने बयान किया। मैं जो सवाल उनसे पूछना चाह रहा था वो उन्होंने खोल दिया है। शुक्रिया मलिक साहब। अब आपकी तरफ आते हैं। अब आप हमें समझाइए कि मकासद क्या है। उन्होंने पहचान बताई कि मसीह की पहचान में लोग धोखा ना खा जाएं। मकसद बताइए, क्या करने वो आए जो अंबिया नहीं कर सके। एक डॉक्टर तो उन्होंने दानियाल, बताया, जी जी प्लीज। आपने जैसे जगहों का कहा तो वाकई ही ये बड़ा जरूरी पॉइंट था जो आपने कहा कि अगर वो बैतलहम है तो फिर कश्मीर में उसकी कब्र नहीं हो सकती, आप समझ गए क्योंकि अब। कश्मीर का कहीं जिक्र नहीं। तो मैं ये सोचता हूँ ये बड़ा अच्छा नुक्ता था और नाजरीन के लिए इन बातों को जानना बड़ा जरूरी है। और अगर खानदान का जिक्र था तो फिर ऐसा नहीं कि वो किसी ऐसे खानदान में, बल्कि जिसे आज दुनिया का एक बहुत बड़ा मजहब और बल्कि तीनों मजाहिब दाऊद से, और अगर हम देखें तो वो भी शजरा बड़ा खुल कर आता है। लोग मकासद की तरफ आते हैं। अगर हम देखें वलादतुल मसीह का मकसद जो इस दुनिया में था और फरिश्ता की मार्फत जो पैगाम आया, मत्ती पहला बाब और उसकी 21वीं आयत में, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। तो बहुत बड़ा मकसद वलादत का जो था वो बनी नो इंसान की निजात का था। और इसके लिए जब पास्टर साहब, हम जी जब आप निजात की बात करते हैं थोड़ा सा बताइए, ये निजात होती क्या है। तमाम मज़ाहब में तसव्वुर निजात मौजूद है। आप किस निजात की बात कर रहे हैं और क्या पैगाम है यहाँ पर, कौन सी निजात है। तमाम मज़ाहब जी में तसव्वुर निजात तो है। जी तस्वर निजात मजाहिब की एक तालीम का नुक्ता हो सकता है, लेकिन यीशु अल मसीह जिस निजात का जिक्र करते हैं वो गुनाहों की माफी, गुनाह से छुटकारा, गुनाह से रिहाई है। क्योंकि मसीहा की खिदमत में हम बड़ा वाज़ेह तौर पर देखते हैं, ज़कई नाम एक शख्स है जो बुरे कामों में और बुरे बातों में था, लेकिन जब उसे निजात का तजर्बा हुआ तो हम देखते हैं कि वाज़ेह अल्फाज ये थे, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। और हम उस इक्तबास में वाज़ेह देखते हैं कि ये शख्स जिसने लूट घसूट से अपना घर भरा हुआ था, इसकी निजात उस दिन हुई कि जो नाजायज दौलत कमाने के जराए थे उससे उसने मुंह मोड़कर अपने खुदावंद की पैरवी में अपने आप को दे दिया। बहुत शुक्रिया। पास्टर साहब, आप बता रहे हैं कि गुनाहों से निजात है, तो ये तो मुआफ़ी है, तौबा है। तौबा से मुराद ये है इकरार करना गुनाह का और खुदा माफ़ कर देता है। तमाम मज़ाहब में किसी न किसी तरह से ये मौजूद है। आप कह रहे हैं कि मसीह गुनाहों से निजात देता है। दीगर मज़ाहब में और फिर मसीह की जो निजात और गुनाहों की मुआफ़ी है, इसमें कोई फ़र्क है क्या, या वही बात है जो दीगर मज़ाहब में? खुदा माफ़ करता है आप कह रहे हैं, मसीह माफ़ करता है। जी, एक दिन खुदावंद यीशु मसीह के सामने एक शख्स को तो शिफा के लिए लाया गया, लेकिन जब मत्ती रसूल के इंजील के नामे बाप की 6ठी आयत में खुदावंद ने उसे कहा कि बेटा खातर जमा रख, तेरे गुनाह मुआफ हुए, तो जो यहूदी आकबरीन थे, हजरात थे, वो कहने लगे ये कौन है। गुनाह मुआफ करने का तो सिर्फ खुदा को इख्तियार है। और वहां पर जनाब हजूर यीशु मसीह ने इरशाद फरमाया, इसलिए कि तुम जान लो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह मुआफ करने का इख्तियार है। अब उनके पास मुआफ करने का इख्तियार इसलिए था क्योंकि निजात के लिए जो कफारा दिया गया सलीब पर, जिसने कीमत दी है, ये उसी को इख्तियार है। मलिक साहब, आपसे सवाल है यही। मज़ाहिब आलम में कोशिश की जाती है कि हम कुछ करके रब्बुल इज्जत की हुजूरी तक जाएं, लेकिन मसीह में हमें एक अनोखापन नजर आता है, और वो ये है कि हम कुछ करके जाते इलाही की कुर्बत को हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि जाते इलाही ने खुद अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यह जाहिर की कि कलिमतुल्लाह और रूह अल्लाह इस धरती पर आ गए हैं। जनाबे मसीहा की बात करता हूं, सूरत
नंबर 3 आले इमरान और उसकी 40 आयत के मुताबिक कि हजरत यहया को भी कहा गया था कि जनाब आप मेहराब में इंतजार कर रहे हैं, आपका एक बेटा होगा जो उस कलमा का, जो मेरा कलमा है, कलमा तुम मिनहू, उसकी तस्दीक करने वाला होगा। तो गोया ये जो मसीहा जब आते हैं तो उनका मकसद कोई दीन, कोई मजहब बनाना नहीं था। उनका मकसद यह था कि गुनाहगार इंसान का रब से मेल करवाएं। लेकिन कैसे? जैसे पहले कहा गया, शरीयत मूसवी के मुताबिक यह था कि लोग अपने गुनाहों की कुर्बानियां देते थे कि वो रब तक मिला सके उनको। लेकिन जब कुर्बानी करने वाला अभी घर नहीं पहुंचता था, तो कुर्बानी करने वाला अभी घर नहीं पहुंचता था तो पहले कोलन फेलन और सोच के एतबार से वो अगला गुनाह कर चुका होता। तो जनाबे मसीहा इसलिए आए ताकि उन तमाम कुर्बानियों की एक हतमी और आखिरी कुर्बानी हो, ताकि अब जो कोई आप पर ईमान लाए, ये इंतजाम इलाही था। हुजूरुल मसीह खुद कहीं से उठकर नहीं आ गए थे। नबूवतों की बात इसीलिए तो हम कर रहे हैं भाई, यही तो वो निशानियां हैं कि परवरदिगार ने गुनाहगार इंसान के लिए ये इंतजाम किया था कि वो मसीह पर ईमान लाकर कुर्बे इलाही हासिल कर सके और जन्नते फिरदौस में, दरे फिरदौस में वो दाखिल हो सके अपनी कोशिशों से नहीं। बहुत शुक्रिया पास्टर परवेज साहब, आपने बातों की बुनियाद रखी। मलक साहब, आपने उनको और ज्यादा खोल दिया। आप दोनों अहबाब का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं वलादतुल मसीह के ताल्लुक से कि आसमान से क्या पैगाम पहुंचाया गया है, और बहुत वाज़ेह बात हो गई। मैं सिर्फ इसको थोड़ा सा मुख्तसरन बता देना चाहता हूँ। खुलासा इसका कि पेशनगोइयाँ मसीह में पास्टर साहब ने आयात पेश की और उन्होंने तकाबला मज़ाहब पेश कर दिया। खुदा ने नजात का क्या इंतज़ाम दे रखा था, उसके लिए आपको तौरेत पढ़ने की ज़रूरत है। कुर्बानियों का एक सिलसिला था, जैसे मोहतरम नवीद मलिक साहब ने फरमाया, वो वक्ती सिलसिला था। आप गुनाह करते हैं, कुर्बानी ले जाते हैं, वापस आते हैं, फिर गुनाह करते हैं, और कुर्बानी, गुनाह इंसान कर रहा है, उसकी जगह पर मर कौन रहा है? किसने ये हुक्म दिया, कुर्बानियों का सिलसिला दिया, और कौन कुर्बानी कबूल करता था? कुर्बानी का हुक्म किसने दिया? खुदा ताला ने। किसको? गुनाहगार इंसान को। अब गुनाह इंसान करता है, मर कौन रहा है? उसकी जगह पर जानवर ज़िबा हो रहा है, उसका खून, और कबूल कौन कर रहा है? खुदा। तो अब खुदा के निज़ाम को समझने की जरूरत है नाजरीन, कि उसने जो निज़ाम दिया है, कबूल करने वाला भी वो है। और जब यूहन्ना उसको देखता है, आज जरूरत है कि आप ज़ातुल मसीह को किस नजर से देखते हैं? पेशनगोइयों की नजर से देखते हैं, या तासुब की नजर से, या झूठी तालीमात की रोशनी में देखते हैं, या अपने नजरियात की रोशनी में देखते हैं? आपकी निगाह कौन सी है? जब आसमान देखता है तो उसने देखा और उसने कहा, वो, जैसा पास्टर परवेज साहब ने फरमाया, देखो वो खुदा का बर्रा, खुदा जिसने इंसान के लिए नजात का, कुर्बानियों का इंतजाम किया। यहां पर खुदा का नबी कह रहा है, देखो खुदा का बर्रा। मलक साहब ने फरमाया, अज़ली अबदी एक ही कामिल कुर्बानी। हुजूर मसीह ने सलीब पर कहा था, तमाम हुआ। नजात, छुटकारे का काम पूरी दुनिया के जितने इंसान कायनात में पैदा हो चुके हैं या होंगे, पढ़ लीजिए, तारीख गवाह है, इल्हामी कुतब गवाह हैं। हमने उन हवालों को खोला भी, और ये बाइबल मुकद्दस में भरे हुए हैं। कुरान वाज़े कह रहा है, उसे निशानी बनाकर भेजा, और यूहन्ना कहता है उस निशानी को देखकर, देखो खुदा का बर्रा, जो कुल कायनात, तमाम बनी नौ इंसान जहां भी बसते हैं, उनके गुनाह को उठा ले जाता है, क्योंकि और कोई था नहीं, ना हो सकता है जो कामिल मसीह की तरह हो। अभी मैंने सूरह मरियम में पढ़ा, मैं तुझे एक पाकीज़ा बेटा बख्शूंगा। अब्रानियों के खत में लिखा है, मेरे लिए एक बदन तैयार किया जाए। इंसान जो शरीयत और गुनाह से दब चुके हैं, बेहाल हैं, ये अपनी कोशिशों से, अपनी मेहनत से निकल नहीं सकते। अब मैं जाऊंगा
और इनके लिए अबदी खलासी का इंतजाम करूंगा। देखो खुदा का बर्रा आज देखने की जरूरत है। पेशनगोइयों की रोशनी में अगर हम देखते हुए नहीं देखते तो खुदा का पैगाम वाज़ेह है। हुजूरुल मसीह ने फरमाया था, मैं तुम्हें मुजरम नहीं ठहराता, मैं तुम्हारी अदालत नहीं करता, मैं तो मोहब्बत में तुम्हें बचाने वाला हूं। लेकिन यह पैगाम जो तुम तक पहुंचा है, अगर तुम इसकी नाफरमानी करोगे, इसको कबूल नहीं करोगे, इसको रद्द करोगे, तो मलिक साहब ये बताइए फिर जो रद्द करेंगे, कबूल नहीं करेंगे इस पैगाम को, उनके लिए किताब मुक़द्दस में क्या आया है, ताकि लोग जान जाएं कि इसको रद्द करने और कबूल करने में आसमानी बरकत कौन सी पा सकते हैं, कौन सी खो सकते हैं। यूहन्ना की इंजील, यानी यूहन्ना की इंजील से मुराद हजरत यूहन्ना की मार्फत मुलहम इंजील, उसका 3 बाब और 16वीं आयत में लिखा है हुजूरुल मसीह के बारे में कि वो इसलिए दुनिया में आए क्योंकि वो खुदा की मोहब्बत का मज़हर थे, ताकि जो कोई उन पर ईमान लाए वो हयाते जावेद, हमेशा की जिंदगी पाए, हमेशा जिंदा रहने के लिए। और साफ जाहिर है जो ईमान नहीं लाएगा वो हलाक होगा। इसी आयत में लिखा हुआ है मुझे मुकम्मल तौर पर क्लियरली। और साथ ही साथ जब बाइबल मुकद्दस की सबसे आखिरी किताब यानी मुकाशफा की किताब देखते हैं तो बारहा बार कोई एक जगह पर नहीं, कई रेफरेंसेस हैं जहां पर लिखा हुआ है कि वो लोग जो मसीहा के नहीं हैं उनको गंधक और आग से जलने वाली झील में सदा जलना पड़ेगा। और एक्चुअली खुदा की कतई तौर पर मर्जी नहीं है कि इंसान जहन्नम में जाए, क्योंकि परवरदिगार की मर्जी यह है कि इंसान मसीहा पर ईमान लाकर हमेशा उसकी हम्द और उसकी सताइश करें। लेकिन हमें ऐसे मज़ाहिब की हमने ऐनक पहनी हुई है जो हमें बाहर निकलने नहीं देती ताकि हम तहकीक करें। और बहुत सारे आपके दोस्त और मेरे दोस्त हकीकत को समझते हैं, कंबल को छोड़ना चाहते हैं जो मजहब का है, लेकिन कंबल उनको नहीं छोड़ता। हकीकत यही है। बहुत और हमारी शुक्रिया। दुआ है कि परवरदिगार उनके मन को और उनके चश्म को, आंखों को, जहनों को मुनव्वर करे ताकि मसीहा को वो शख्सी तौर पर पहचान सके। ये किसी मजहब की तबलीग नहीं है, ये परवरदिगार आलम की मोहब्बत को सिद्ध के दिल से कबूल करना है। ना ही मैं किसी मजहब का मुबल्लिग हूं, मैं तो खुदा की मोहब्बत की तशहीर करने वाला शख्स हूं। इसलिए मैं अपने नाज़रीन से कहूंगा, मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने इस बात को वाजे कर दिया है। पास्टर प्रवेश साहब, आपने बहुत खूबसूरत बातें की, शुक्रगुजार हैं आपके। अब आप भी थोड़ी सी ये बात बताइए कि इस शख्सियत को 3 मज़ाहब में जिक्र है, समझने में रुकावटें क्या हैं और कैसे वो दूर हो सकती हैं? आपने जिस अंदाज से यूहन्ना अस्तबागी को कोट किया, मैं पूरे तौर से कायल हो गया हूं कि आज जैसे यूहन्ना अस्तबागी ने देखा था कि देखो खुदा का बर्रा, अगर आज तासुब को खत्म कर दिया जाए, अगर आज हकाइक की रोशनी में हम हकीकत पसंद होकर सच्चाई को ढूंढना शुरू करें। लेकिन एक बात जो अभी आपने मलिक साहब से पूछी और मैं उसका इजाफी करके फिर आपके उस पैगाम की तरफ आ रहा हूं कि अगर कोई ये नहीं मानता, आज जिंदगी टीवी पर और बहुत सारे वसाइल से खुदा कलाम कर रहा है, हम कलाम हो रहा है। और यूहन्ना की इंजील के 12वें बाब की 48वीं आयत पे लिखा है, जो मुझे नहीं मानता और मेरी बातों को कबूल नहीं करता उसका एक मुजरम ठहराने वाला है। यानी जो कलाम मैंने किया है आखिरी दिन वही उसे मुजरम ठहराएगा। आज मैं अपने सामाईन और इस नेटवर्क के वसीला से जितने लोग इस शो को देख रहे हैं, इस आयत की रोशनी में उन्हें वार्न करना चाहता हूं। चाहे आपका ताल्लुक किसी मजहब
किसी फिरका से है। लेकिन याद कीजिए, खुदा का कलाम जो सच्चा और बरहक है, कलाम पाक में लिखा है कि वो लोग जो इस सच्चाई को नहीं मानेंगे वो मुजरम ठहराए जाएंगे उस पाक और सच्ची अदालत में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पास्टर साहब फरमा रहे हैं इंसानों की अपनी आज़ाद मर्जी है, ये रुकावट है। आज़ाद मर्जी बरकत भी है, लेकिन अगर कोई इसका गलत इस्तेमाल कर दे तो उसके लिए फिर ये फैसला अबदियत में असरअंदाज होगा। मलक साहब, बहुत शुक्रिया। पास्टर परवेज साहब, क्या रुकावटें हैं, कैसे दूर हों ज़ातुल मसीह को जो बेहतर तौर से जो असल तालीम है नहीं समझते, क्या रुकावटें हैं और उनको दूर कैसे किया जाए? मैं समझता हूं कि जो लोग मज़ाहिब की पैरवी करने वाले हैं, उनके अंदर एक ऐसा खौफ और एक ऐसा डर पैदा कर दिया गया है कि आप जो ही इस दायरे से निकलकर कुछ और जानना चाहेंगे, जैसे आपने फरमाया हुजूरुल मसीह के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, इंडियन फिल्मों के सारे हीरो देखते रहे, लोग फिल्में देखते रहे, उन्हें कोई परवाह नहीं है खानदान वालों को, लेकिन जिस दिन जीसस फिल्म देखेंगे उस दिन उनको मौत पड़ेगी। क्यों? इसलिए कि इब्लीस कतई तौर पर नहीं चाहता, इब्लीस कतई तौर पर नहीं चाहता कि वो हुजूरुल मसीह की बाबत जाने। और मैं समझता हूं कुरान हकीम इंजील मुकद्दस के बाद मेरे दिल की किताब है। काश के मेरे मुसलमान दोस्त उर्दू तर्जमा के साथ कुरान हकीम को समझ कर पढ़ें, अदराक और फहम के साथ पढ़ें, तो फिर देखें कि हुजूरुल मसीह से मुताल्लिक कुरान हकीम क्या कहता है। बहुत शुक्रिया, साथ ही साथ बहुत शुक्रिया मलक साहब। मैं यहां पर आपकी बात के साथ एक बात और आज पूरी दुनिया के लोगों को बताना चाहता हूं। अगर आप कुरान को मजहबी इल्हामी किताब मानते हैं तो जितने अंबिया का जिक्र है उस किताब में, आप उनकी हयात तैयबा का खुद मुतालिया कीजिए और उसी किताब में आप जनाब हुजूरुल मसीह की हयात तैयबा का जिक्र भी है। आप खुद मुतालिया कर लीजिए वो अंबिया जिनका जिक्र है, और फिर देखिए क्या तस्वीर कुरान दिखाता है, क्या कौन से असबाक कुरान पढ़ाता है, कौन सी गुत्थियां कुरान सुलझाता है, कौन सी तस्वीरें कुरान दिखाता है। आपकी अकल दंग रह जाएगी कि उस किताब में ही ऐसे असबाक आपको पढ़ने को मिलेंगे जो शायद आपने जिंदगी में किसी के कहने पर नजरअंदाज किए हैं। मलिक साहब, जो बात आप करना चाहते थे प्लीज कीजिए। साथ ही साथ मैं आपकी खिदमत में यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि बास औकात हमारी अपनी हट दर्मी होती है और हम आगे नहीं बढ़ना चाहते। दूसरी बात, किताब मुकद्दस में लिखा है कि नफसानी और जिस्मानी आदमी खुदा के रूह की तह की बातों को नहीं समझता। और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को यह समझने की जरूरत है कि उनकी अक्लों पर पर्दे पड़े हुए हैं। गिशावतुम, उनके अबसार पर, उनके दिलों पर पर्दे पड़े हैं। सूरह यानी पहली सूरत सूरह अलिफ लाम मीम में लिखा हुआ है। और जिस सबब से वो इन हकायक को वो समझते नहीं है, उनके दिलों पर पर्दे पड़े हैं, वो शक में हैं और वो समझते नहीं हैं। और साथ ही साथ किसी बड़ी चीज के हसूल के लिए भाई कीमत अदा करनी पड़ती है। शायद हमें अपने रिलेटिव्स, अपने खानदान, हमारे अकरबा, हमारा दीन कुर्बान करना पड़े मसीहा के पीछे चलने के लिए। तो एक कीमत अदा करनी पड़ेगी मसीह के पीछे होने के लिए, क्योंकि उसने तेरे लिए भी तो मेरे अजीज कीमत अदा की है। इसीलिए तो हजरत पौलुस फरमाते हैं कि तुम अपने नहीं हो, तुम कीमत से खरीदे गए हो। बस इस बदन से परवरदिगार आलम का जलाल जाहिर करो। तो मैं समझता हूं यही वो वजूह है। और फिर मैं जैसे कह रहा था कि जो डर और खौफ पैदा किया गया है कि जनाब अगर आप हुजूरुल मसीह के पीछे चलेंगे, इंजील मुकद्दस को पढ़ेंगे, तो आपको कैं कर दिया जाएगा। जिस सबब से बहुत सारे लोग हैं जिस सबब से वो हुजूरुल मसीह को पहचानना चाहते नहीं हैं। लेकिन बहुत सारे अंडरग्राउंड हैं
جن کے من کو اس نے روشن کیا، خوابوں میں مسیحا ان پر ظاہر ہوئے اور انہوں نے دنیا کو ایک طرف رکھ کر اپنی ابدیت کا فیصلہ کر لیا اور حضور المسیح کے ساتھ لپٹ گئے۔ بہت شکریہ۔ اور یہی دعوت عام ہے یہاں پر ہمارے ایک ناظرین کو۔ بہت شکریہ ملک صاحب۔ پاسٹر پرویز صاحب، لوگ مسیحی جو ہیں وہ خداوند مانتے ہیں اور جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں وہ نبی مانتے ہیں، تو کیا بات ہے جو وہ ماننے سے رہ جاتے ہیں؟ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ کیا بات ہے جو وہ ماننے سے رہ جاتے ہیں؟ در حقیقت جب تک خداوند جو ہے وہ آقا اور مالک ہے، اگر آپ صرف اسے ایک پیغام رساں یا نبوت تک مانے اور وہ آپ کی زندگی کا مالک نہیں، جس کے پاس آپ کی زندگی کا سارا دار و مدار ہے، تو پھر آپ یہ کر نہیں سکیں گے۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص اسے مالک مان لے تو پھر اس کی مرضی کے تابع ہونا پڑے گا اسے۔ مالک جو ہے جی جی، وہ جو کہے اس کو سننا ہوگا اور اس کی فرما برداری کرنی ہوگی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ دونوں احباب کا۔ ملک صاحب، سورہ ال عمران 55 آیت، جتنوں نے اس کی پیروی کی، خدا تعالی جو لوگ الہامی کتاب مانتے ہیں کہتا ہے میں تیرے پیروکاروں کو قیامت تک غالب رکھوں گا۔ پچھلی آیات میں ایک ہی ہستی پورے قرآن میں مقربین میں ہے، باقیوں کے بارے میں تعلیم ہے کہ پل صراط سے بھی گزرنا پڑے گا، اس کے بعد باقی مراحل بھی ہیں، حساب کتاب کا مراحل بھی ہیں، لیکن ایک ہستی ہے مقربین میں۔ زمین کی زندگی قیامت تک مقربین میں، اور جو اس کی پیروی کریں گے، وعدہ ہے خدا تعالیٰ کہ میں انہیں غالب رکھوں گا۔ لوگ اس آیت کو پڑھتے ہیں، شاید پریچ بھی کرتے ہیں، کیا بات ہے جو اس میں سے نہیں سمجھ جا رہی؟ آپ دونوں بھائیوں نے بھی کی ہے کہ جو تعصب اور نفرت کا عنصر ہماری زندگیوں میں پایا جاتا ہے، اس سبب سے ہم ان حقائق کو نہیں سمجھ پاتے، اور ہم پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ قیمت نہیں ادا کرنا چاہتے، مسیحا کے پیچھے وہ نہیں لینا چاہتے، جس سبب سے یہ رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں اور لوگ ان مسیحا کے پیچھے چلنا نہیں چاہتے، اور خدا کے مقرب کو، مسیحا کو حاصل کر کے، ایمان لا کر، ایکسپٹ کر کے وہ خود غالب آنے والوں میں نہیں ہونا چاہتے، بہت وہ شکریہ، ہمیشہ مغلوب رہنا چاہتے۔ بہت شکریہ۔ یوحنا کی انجیل پہلا باب 12ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس سے پہلے بھی اگر آپ پڑھیں تو لکھا ہے مسیح کے بارے میں، وہ اپنوں میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں آسمان کی بادشاہت کے وارث بنا دیا ہے۔ فیصلہ ہمارا ہے۔ یہ پیغام پوری دنیا کے لیے جو اس ولادت المسیح کے موقع پر ہے کہ خداوند یسوع المسیح میں ہمیشہ کی زندگی مل رہی ہے، پانا چاہیں گے یا نہیں، فیصلہ ہم سب کا ہے۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہتے ہیں آپ کا میزبان دانیال۔